So, hello to everyone. Now, without wasting much time, I hope you all uh, go through the syllabus which I already had discussed in our earlier videos. So, some of the contents about the first chapter are about the nature and and importance of marketing. So, I'll try to cover maximum in today's video. So, let's begin with the definitions. What exactly the marketing is all about? Before proceeding further, I'll tell you Philip Kotler, one of the very famous author and expert in marketing, whom the title is given as a father of marketing. In marketing field, you please remember Philip Kotler. The name itself is marketing. Philip Kotler, what he thinks about the marketing. So please try to remember this definition for your coming exams and for your future use and your concepts. All right, so what Philip Kotler thinks about the marketing? It is a social and managerial process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering, and exchanging the products of the value with others. यानी कि ये एक प्रकार का सोशल एज वेल एज मैनेजरियल प्रोसेस है। क्या करता है जिससे कि कोई भी इंडिविजुअल्स हो या तो कोई ग्रुप हो, क्या करता है वो अपनी नीड या तो वांट जो है वो कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई करता है। और मार्केटर का काम क्या है? वो क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? नीड एज वेल एज वांट एंड एक्सचेंजिंग दी प्रोडक्ट। फिर उसके बाद क्या करना है? वो एक्सचेंज करेगा प्रोडक्ट्स को। प्रोडक्ट्स के साथ वैल्यू, प्लीज याद रखिए वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट्स तो है ही है, लेकिन मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू वैल्यू जब आप किसी के साथ एक्सचेंज करते हैं, इट मीन्स यू आर डूइंग अ मार्केटिंग। एंड दिस डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड बाय द marketing educators and practitioners. It highlights the core concepts like need, want, डिमांड, प्रोडक्ट्स, वैल्यू, कॉस्ट एंड सेटिस्फेक्शन। मैंने आपको जब सिलेबस बताया था उस वक्त मैंने आपको कोर कॉन्सेप्ट्स भी बताए थे, लेकिन इन सारे कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम बाद में डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। आगे एक और डेफिनेशन है जो कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन है, जिसको हम AMA कहते हैं। AMA यानी कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, and services to create the exchange that satisfy the individuals and organizational objectives. ठीक है मित्रों, तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है डेफिनेशन, इसको मेमोराइज कर लेना। कभी भी आपको मैं पूछ सकता हूँ आने वाले दिनों में, तो प्लीज इसको मेमोराइज करते रहें। So we can conclude that marketing is the process of identifying the need. मैंने आपको कहा कि जब तक हम किसी की नीड को नहीं पहचान लेते तब तक हमारा काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। यानी कि मार्केटिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें किसी की नीड की पहचान करनी है ऑफ द टारगेट ऑडियंस। और वो भी किसकी? जो आपका टारगेट है, टारगेट कंज्यूमर्स है, पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उन सब की आपको नीड को आइडेंटिफाई करना है एंड प्रोवाइड दी प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली। और आपको प्रोडक्ट उनको ऑफर करना है और अकॉर्डिंगली इन द एक्सचेंज ऑफ सम वैल्यू। जब आप किसी वैल्यू को एक्सचेंज करते हैं उसके साथ में आपको किसी को प्रोडक्ट ऑफर करना है। दिस प्रोसेस मेनली कंसिस्ट ऑफ टू पार्टीज, यानी कि कम से कम दो पार्टी की जरूरत पड़ेगी एक्सचेंज करने के लिए। कोई अकेला एक व्यक्ति अपने आप के साथ कभी भी एक्सचेंज नहीं कर सकता है। मैं आपको बताऊंगा ये टॉपिक आगे कोर कंसेप्ट में एक्सचेंज और ट्रांजेक्शन के बारे में। फिलहाल आप समझ लो कि जो प्रोसेस है इट मस्ट कंसिस्ट टू पार्टीज, ऑन दी वन साइड मार्केटर्स एंड there who to resource markets like raw material markets, labor markets, money markets, and so on, to buy these resources and shape them into a goods and services for their target consumers. On the other hand, consumers are there who provide vital information to the marketers besides money for using various products and services. Now let us understand what kind of the nature about the marketing. So nature of marketing is something like this. Please memorize these points. Marketing is a customer oriented, marketing is the delivery of value, marketing is the network of relationships, marketing as a separate discipline, marketing is the business. Let me remind you all about this.
the topic itself, nature of marketing is very important to understand. So far as exam point of view, it is not so much of important. अगर मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा होता तो मैं ये सब चीज़ें आपको ज़रूर बताता। फिलहाल आप इतना समझ लो कि ये आपको सिर्फ समझना है, अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। खैर, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम सोचते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। जैसा कि मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हो, मार्केटिंग इज अ कस्टमर ओरिएंटेड। तो इस यहाँ कहने का ये मतलब है, सीधा साधा मैं पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा हूँ, सिंपली आपको ये बताऊंगा कि जो मार्केटिंग है वो हमेशा ही शुरुआत जो होती है वो भी कस्टमर से होती है और जब उसका अंत होता है वो भी कंज्यूमर्स के साथ होता है। यानी कि अगर आप रिसर्च करके किस कस्टमर को, कौन से कस्टमर को किस प्रकार की प्रोडक्ट चाहिए, वो आप जब रिसर्च करके पता करते हो, उसके अकॉर्डिंगली ज़रूरत के हिसाब से आप अगर मटेरियल प्रोड्यूस करते हो और फिर उसको बेचते हो तो पूरा का पूरा करते हैं मार्केटिंग। यानी कि मार्केटिंग जो होता है वो हमेशा ही कस्टमर ओरिएंटेड ही रहता है। एक दूसरा जो है वो टॉपिक है मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ वैल्यू। तो ये बात बिल्कुल आप समझ लो कि कहीं ना कहीं सिर्फ प्रोडक्ट बेच के आपको बैठे नहीं रहना है, लेकिन हमेशा ही ये बात पक्की होती है कि मार्केटिंग जब आप करते हैं तो साथ में आप उसको वैल्यू प्रदान करते हैं। यानी कि कभी ये होता है कि आपने सपोज फॉर एग्जांपल कोई एक मोबाइल फ़ोन खरीदा है, तो आपने सिर्फ मोबाइल फ़ोन नहीं खरीदा, लेकिन उनके साथ जुड़ी कई सारी ऐसी चीज़ें आपने ली हैं जो कि आपने सोची है, जो आपको सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब जो भी पैसे आपने खर्च किए हैं उसके सामने आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और उसकी आपको क्या वैल्यू महसूस हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ वैल्यू। ऑलवेज सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचना है, सेलिंग नहीं करना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके कस्टमर्स के लिए वो प्रोडक्ट कितनी वैल्यूएबल है। अकॉर्डिंग टू डी रोज, वैल्यू इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एट द लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ओनरशिप एंड यूज। यहाँ पर ये बात आप बिल्कुल ही याद कर लेना, जैसा मैं अभी कह रहा था कि वैल्यू इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स। ठीक है मित्रों, बिल्कुल ये पढ़ लेना आप लोग। स्टूडेंट्स, एक बात ये भी आप नोट कर लो, मार्केटिंग का जो नेचर है इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप एक बार ही के रिलेशन नहीं बनाते हैं। कोई प्रोडक्ट अगर आप बेचते हैं तो हमेशा हर मार्केटर यही चाहता है कि जो भी कस्टमर्स उनके साथ जुड़े हैं वो हमेशा ही जुड़े रहे और दूसरे कस्टमर्स को भी वो इन्फ्लुएंस करके आपके साथ आने के लिए वो रिक्वेस्ट करे या तो रेफरेंस दे। द कस्टमर इज एट द सेंटर एज एंड द फोकस ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज। According to Philip Kotler, relationship marketing is the practice of building long-term satisfying relationship with the key parties like customers, suppliers and distributors। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप कस्टमर्स को ही ध्यान दें, आपके साथ जितने भी चैनल्स में जुड़े हुए लोग हैं उन सब पे आपको ध्यान देना है। जैसे कि सप्लायर्स हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन सब के साथ आपको बहुत ही अच्छे स्वीट रिलेशंस आपको मेंटेन करने पड़ते हैं और करने चाहिए, तभी जाके आप मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे। तो एक मार्केटिंग एज अ सेपरेट डिसिप्लिन, कहने का ये मतलब है कि ये अभी किसी और चीज़ का हिस्सा नहीं है, ये बिल्कुल उनकी एक अपनी व्यक्तिगत पहचान है। देयर यूज द डेज व्हेन मार्केटिंग वाज ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक्स का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आपको मैं बता दूं मार्केटिंग जो है वो आज बहुत ही अपना एक खुद एक डिसिप्लिन है, अलग से उनकी एक शाखा है, जैसा हम कह सकते हैं। विद द इमर्जेंस ऑफ द मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट, द इश्यूज ऑफ ग्रीन मार्केटिंग एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हैव कम अप एंड रिगार्डिंग दैट वेरियस लॉज हैव बीन फ्रेम्ड। तो ये आप कह सकते हो कि मार्केटिंग जो है बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही व्यक्तिगत पहचान वाला टॉपिक है। और एक लास्ट में जो टॉपिक है वो है मार्केटिंग इज अ बिजनेस। तो कहीं ना कहीं ये आप पढ़ लो, व्हेन इट इज सेड दैट मार्केटिंग इज अ बिजनेस, द intention is that all the activity starts from marketing, that is to say through knowing the consumers and end up and consumers। यानी कि जैसे स्टार्ट भी कंज्यूमर से होता है और एंड भी कंज्यूमर्स पे ही होता है। दैट इज टू से नोइंग कस्टमर्स डिसोनेंस, यानी कि क्या चाहिए, इट मीन्स द एंटायर बिजनेस evolves around the marketing। According to Peter F. Drucker, marketing is so basic that is it cannot be considered as the separate function, it is a whole business seen from the point of view of its final result।
That is, from the customer's point of view, business success is not determined by the producer but by the customer. एक लाइन आप बिल्कुल यहाँ पर फोकस करके ध्यान रख ले कि एक जो है वो बिजनेस सक्सेस जो है it is not only determined by the producer but by the customer. So we can say that marketing is a business. I hope you all understand about the nature, and now later on I'll upload more videos for next coming topics. Thank you so much for today.